السلام علیکم دوستوں، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کورل ڈرا میں لیئر پہ کام کریں گے۔ لیئر پہ کام کیسے کرتے ہیں اور لیئر کو استعمال کیوں کرتے ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ نیا صفحہ کھولا۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ لیئرس ڈیزائنر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لیئر پر کام کرتے ہیں لیئر بیسڈ، اور ایک وہ جو بغیر لیئر کے ایک ہی لیئر پہ ساری ڈیزائننگ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نان لیئر بیسڈ۔ لیئر بیسڈ اور نان لیئر بیسڈ۔ تو لیئر کا اصل مقصد یا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی سہولت یا ٹائم کی بچت بھی کبھی آ جاتی ہے اس میں، اور کبھی کبھی سہولت کے لیے بھی انہیں آپ کو اپنی ضرورت کے مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے۔ ٹولز میں ہم گئے اور آبجیکٹ مینیجر کو اوپن کیا۔ یہ ہماری لیئر مینیو ہے آبجیکٹ مینیجر میں۔ تو جو بائی ڈیفالٹ اس کا لیئر ہے لیئر 1۔ مثال کے طور پہ میں ایک سرٹیفکیٹ بنانا چاہ رہا ہوں، تو سرٹیفکیٹ میں کئی قسم کا مواد ہوگا، اس میں بیک گراؤنڈ بھی ہوگی، اس میں بارڈر بھی ہوگا، ٹیکسٹ بھی ہوگا۔ تو اس کے لیے میں اس کو ڈیزائن کروں گا لیکن لیئر پہ۔ تو لیئر فرسٹ جو لیئر ہے اس کو میں ری نیم کر کے F2 پریس کیا یا رائٹ کلک کر کے ری نیم کیا، اور اس کو میں نے دے دیا گراؤنڈ۔ اب میں اس کو ایک سمپل سی کلر کی گراؤنڈ دے دیتا ہوں، اور اچھا یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ اور بیک گراؤنڈ آپ کا امیج بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں۔ تو اب ہم نیا لیئر یہاں پہ لیں گے، نیو لیئر۔ اب جیسے یہاں پہ کلک کریں گے نیا لیئر آ گیا۔ نئے لیئر کو میں نام دے دیتا ہوں بارڈر۔ یہاں پہ F2 کیا، زوم ان ہو گئے، F5 لائن کا جو پینسل ٹول کا شارٹ کی ہے، شارٹ کمان، کنٹرول ہولڈ کر کے ایک سیدھی لائن کھینچی، F10 پریس کیا، اس کو ہم کر دیتے ہیں کرو، اور اس کا تھوڑا سا کرو کر دیتے ہیں، اور اس کی میں ڈپلیکیٹ کاپی لوں گا۔ کنٹرول پریس کر کے اس کو کلک اینڈ ڈریگ کیا، اور پہلے رائٹ کلک کیا، اور اس کے بعد لیفٹ کلک چھوڑا، اور یہ میں کنٹرول R مسلسل پریس کر کے اس کی کاپی لی، اور اس کو سلیکٹ کر کے گروپ کیا۔ اس کی کنٹرول اور شفٹ دونوں کو ہولڈ کر کے اس کو میں یہاں سے کلک اینڈ ڈریگ ڈاؤن کرتا ہوں، تو اس کی ڈپلیکیٹ کاپی اسی جگہ پہ بن گئی۔ سب کو سلیکٹ کر کے میں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں، اور اس کی میں لوں گا ڈپلیکیٹ کاپیز۔ یہ ڈپلیکیٹ کاپیز میں نے لیں جناب۔ اس کو گروپ کر کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ سلیکٹ کیا اور سی دبایا تاکہ سینٹر میں ہو جائے۔ اب اس بارڈر کو سلیکٹ کر کے، آلریڈی یہ بارڈر کے لیئرز پر ہی ہے، بارڈر کو سلیکٹ کر کے میں نے کلر دیا، اور کلر دینے کے بعد میں شفٹ F4 کیا فل اسکرین پہ۔ اب اس کی ایک ڈپلیکیٹ کاپی نیچے لی، اور ایک ڈپلیکیٹ کاپی روٹیٹ کر کے رائٹ کلک کنٹرول ہولڈ کرتے ہوئے دوسری کاپی لی، اور اس کے ساتھ سلیکٹ کر کے ٹاپ رائٹ، اور اس بارڈر کو ہم تھوڑا سا کنٹرول کلک کر کے جب اس کے ایک کلک کریں گے تو یہ یعنی ان گروپ کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی، جو اس کا پارٹ ہے گروپ ہوا ہوا وہ سلیکٹ ہو جائے گا کنٹرول پریس کرنے سے۔ اس کی ہم نے ڈپلیکیٹ کاپی لی، رائٹ کلک کرتے ہوئے کنٹرول R، اور اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بارڈر کو سلیکٹ کر کے، اور بعد میں یہ سلیکٹ کر کے B فار باٹم اور R فار رائٹ، اور اس بارڈر کی دوسری کاپی لیتے ہوئے ہم اسی ٹاپ والے بارڈر کے ساتھ سلیکٹ کر کے L پریس کریں گے لیفٹ کے لیے، تو یہ ہمارا بارڈر تیار ہو گیا۔ پورے بارڈر کو سلیکٹ کیا، گروپ کیا،
और P दबाए, सेंटर में हो गया। अब हम टेक्स्ट पे काम करेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मैं टेक्स्ट पे काम करूँगा, कोरल ड्रा उर्दू लर्निंग, अब मिसाल के तौर पे इसको मैं अगर क्लिक करके मूव करता हूँ या छोटा बड़ा करता हूँ, तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि गलती से टेक्स्ट सेलेक्ट होने की बजाय ग्राउंड सेलेक्ट हो जाती है और आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। या आप क्लिक करके छोटा बड़ा करेंगे और आपका माउस थोड़ा सा भी यानी सेलेक्शन सेलेक्ट करने की बजाय बैकग्राउंड पे चला जाता है और आप जैसे ट्रैक करते हैं क्लिक एंड ड्रैग तो ग्राउंड रिमूव हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन लेयर का इस्तेमाल इसलिए होता है कभी कभी कि अगर आपके पास काम ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर अगर आपका कंप्यूटर पेंटियम 2 है या बहुत स्लो है, तो अब ये 4 ऑब्जेक्ट का जो ग्रुप है ये बॉर्डर पे पड़ा हुआ और ये टेक्स्ट भी बॉर्डर पे ही पड़ा हुआ है। इसके लिए मैं नई लेयर बनाऊंगा, इसको नाम दिया टेक्स्ट का। अब मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, या इस टेक्स्ट को पूरा उठा के मैंने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर देना है इस टेक्स्ट वाले लेयर पे, तो आपने देखा कि ये बॉर्डर से सीधा टेक्स्ट के लेयर पे मुंतकिल हो गया है। अब हमने काम करना है टेक्स्ट पे, और बॉर्डर और बैकग्राउंड हम चाहते हैं कि यानी उसकी सिलेक्शन ना हो, तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड की जो लेयर है इसमें यहाँ पे पेंसिल का निशान है, इसको हम लॉक कर देंगे। और अगर हमें ज़्यादा मुश्किल सामने आती है तो यहाँ पे जो आई का निशान बना हुआ है शो और हिडन के लिए, उसको क्लिक करेंगे तो बॉर्डर स्क्रीन से गायब हो जाएगा। इसी तरह जो बॉर्डर है, बैकग्राउंड गायब हो गया, बॉर्डर है, बॉर्डर को भी हम लॉक कर देते हैं यहाँ से और हिट। लेकिन फॉर द टाइम भी चूँकि मैं टेक्स्ट बना रहा हूँ और टेक्स्ट के लिए हमें बॉर्डर भी लाजमी देखना है ताकि हमें पता लगे कि हम टेक्स्ट में कितने तक बना रहे हैं और कहाँ तक हमारा टेक्स्ट आगे जा रहा है, अहाते का हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं दोबारा इनेबल करूँगा ग्राउंड को भी, ओनली मैंने लॉक किया मैं दोनों को। तो अब ये देखिए, मैं कंट्रोल ए प्रेस करके सेलेक्ट ऑल करता हूँ तो ओनली टेक्स्ट सेलेक्ट होता है, एडिट सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स, ओनली टेक्स्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेयर्स लॉक हैं। अब मैं इजीली ग्राउंड के ऊपर सिलेक्शन कर सकता हूँ, इजीली जितना भी टेक्स्ट हो। F2 प्रेस किया, जूम इन, तो इसको सिलेक्शन करने के बाद मिसाल के तौर पे अगर आपने थोड़ा बहुत काम नीचे करना है, इट इज़ टू सर्टिफाई मिस्टर डैश डैश सन ऑफ डैश डैश हैज completed 1 month oral draw course। तो ये मिसाल के तौर पे टेक्स्ट हमारा आ गया। इसको थोड़ा सा हम अगर छोटा करेंगे और गलती से बॉर्डर पे भी चला जाए तो कुछ नहीं होगा, देख लीजिए आप। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा इनसाइड पे किया, थोड़ा सा इसको जस्टिफाई किया, यहाँ पे एक छोटी सी स्टैम्प बना लेते हैं। स्टैम्प का भी एक ट्यूटोरियल हमने किया हुआ था, लिहाजा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसी टेक्स्ट को यहाँ पे लिया कॉपी, इसको छोटा किया और ये टेक्स्ट टू पाथ 6 कोरल ड्रा सीखना, कीबोर्ड उर्दू कोरल ड्रा सीखना। इसको हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कंट्रोल करके टेक्स्ट सेलेक्ट किया और फास्ट छोटे हो गए। इसको दोनों को सेलेक्ट करके रेक्टेंगुलर टेक्स्ट को कोरल ड्रा
मिसाल स्टैम्प हो गई। स्टैम्प के लिए हमने यहाँ पे नया लेयर ले लेना, स्टैम्प इंटर कर देना है और स्टैम्प को पूरा उठा के यहाँ पे स्टैम्प के ऊपर ड्रैग कर देना है। तो अब चूँकि मौके की मुनासबत से और मौके के लिहाज से हर काम करना पड़ता है, तो इस वक्त मेरे ज़हन में कोई और आइडिया है नहीं। अक्सर ऐसा काम आ जाता है जिसमें आपके पास अक्सर आपने देखे होंगे पाकिस्तान में जो बड़े बड़े पोस्टर बनते हैं और एक एक पोस्टर पे 50-50, 100-100 नाम या 20-20, 25-25 नाम होते हैं और अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो उस टाइप के पोस्टर में आपको बड़ा काम आएगा कि आप दाएं बाएं अपना कुछ सेटिंग बना के और हर लेयर को अपना नाम दे दें, या जैसा कि मुंतज़मीन के लिए जो नाम है अलग लेयर, जो फुल लेयर बना लिया मुंतज़मीन का, और इंतज़ामिया के लिए और मेहमान ख़ुसूसी के लिए अलग लेयर बना के उस पर, तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको बाद में भी इसको एडिट करना इजी रहेगा। अब बात आती है कभी कभी हमें लॉक करना इजी नहीं रहता। मैं दोनों बैकग्राउंड और इसको अनलॉक कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है हमें लॉक करना इजी नहीं रहता और एक ही लेयर पे काम करना पड़ता है और बार बार लेयर्स को हम लॉक नहीं कर सकते। तो इसके लिए इजी तरीका ये है कि जिस लेयर पे काम करना हो उस लेयर को सेलेक्ट करके, मिसाल के तौर पे स्टैम्प की लेयर है, स्टैम्प को सेलेक्ट किया तो ये लेयर ऑटोमेटिकली स्टैम्प वाली सेलेक्ट हो जाएगी, या अगर बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं तो बॉर्डर वाली लेयर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। तो सिलेक्शन के बाद यहाँ पे दरमियान वाला बटन है एडिट अक्रॉस लेयर्स। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो जो सेलेक्टेड लेयर है इसके अलावा कोई भी लेयर जो है तो उस पर सिलेक्शन नहीं होगी। एज ए डिसेबल्ड आप यहाँ पे आपको नज़र भी आता होगा, यहाँ पे डिसेबल्ड है। मैं किसी चीज़ को टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ नहीं होता, स्टैम्प को सॉरी स्टैम्प है, स्टैम्प को ही हमने वो किया था। स्टैम्प बॉर्डर को सेलेक्ट करता हूँ और ग्राउंड को और टेक्स्ट को, कोई भी नहीं हो रहा। क्यों? हमने स्टैम्प वाली लेयर के ऊपर एडिट अक्रॉस लेयर्स किया था। मिसाल के तौर पे हमने अभी बॉर्डर पे काम करना है तो हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एडिट अक्रॉस लेयर ख़त्म कर देते हैं ये, और इसके बाद हम बॉर्डर के लेयर को सेलेक्ट करके एडिट अक्रॉस लेयर करेंगे। तो अब क्या होगा, हम स्टैम्प को सेलेक्ट करते हैं नहीं होता, टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड कुछ नहीं होता, ओनली बॉर्डर में काम हो सकता है। बॉर्डर को हम एडिट कर सकते हैं और कोई भी इसमें हम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, इसमें वक्त की बचत होगी। अगर आपके पास स्लो कंप्यूटर है और उस पर जितना मवाद ज़्यादा होता जाएगा आपके कंप्यूटर की जो वर्चुअल मेमोरी पे असर पड़ेगा और कंप्यूटर स्लो होगा, पेज की मूविंग बहुत स्लो होगी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि फॉर द टाइमिंग अपने इस्तेमाल के लिए अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो, मवाद ज़्यादा हो, तो आप इसको अनविजिबल भी कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही कम टाइम का सामना करना पड़ेगा। सब जिस प्रोजेक्ट पे काम करना हो उसी को सेलेक्ट करके उसी पे काम किया जाए तो ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज़ में भी दोबारा इनको काम ख़त्म होने के बाद दोबारा ओपन कर लें। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नई टिप्स के साथ। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।